So today we are going to see the last topic of integration. That is, what does it means by the OAuth authentication? So having one diagram for that, SFDC classes here. Okay, see. Now understand one thing. Uh, so far what we have done is we created the web services and let me try to explain you first of all what we did and what are the things that we are expecting with the OAuth authentication. Now, what we did so far is you created the web services, inside your Salesforce or inside your Salesforce instance, you created the web services. And then any of the third party system can now call this web service, For that, it certainly requires the endpoint URL and everything. So what you supplied over, this was with the help of URL mapping. We were giving this particular path, and this is a path to access that particular web service. And you were using web workbench. The workbench will going to create an endpoint URL automatically for that, right? And in the endpoint URL, it will contain everything whatever required to access this, and this is the name of that particular web service. So the third party system was by directly using that particular endpoint URL, the third party system was able to hit this web service, and this web service on response it was giving response back to the third party system. This was the general flow what we have implemented so far, right? Now there were different types of operation. For that we have learned all the different types of methods. जैसे कि if this third party system just wanted to retrieve the data from any of the object, तो उसके लिए आपने पढ़ा get method. ठीक है. So get method से I designed the web service so that it could provide the response back to the third party system. Anyways, now if with the help of web service, if some data is going to be get supplied, and you wanted to insert that record, you wanted to perform insert operation. So when you just wanted to have retrieve, you just wanted to retrieve the data, you will be writing the web service with the get method. Okay. And then if you wanted to insert a new record, for example, if third party system is transferring us any of the record and we wanted it to be get inserted, so for that what method we have learned, we learned a method called as post method. Okay. Now, if we wanted to delete the record, that if using the third party system, if they are supplying name, or rather if they are supplying some other parameter like ID or maybe some other value. Now, based on that, if you wanted that this web service to delete the record from your object, and if this is the object, right? If this is the object, okay, account, contact, whatever. If you wanted to retrieve the data from the object, there is a get method. If you wanted to insert a new record, for example, third-party system is providing some parameter, and based on that parameter, we wanted to insert the record into the object, then we will go for the post method. Now, if using the web service, the third-party system wanted to delete some existing record, then we actually go with the delete method. There is a HTTP delete method for that. Yesterday we have learned something called as your put method. So when they wanted to update, when they wanted to update some record, they will pass some data and they wanted it to be get updated. So for that we have learned a method called as put method was there. I told you for the upsert method that I given you in the homework. Okay, insert plus update. There's a patch method for that. So this what we have learned is okay, based on the operation what we wanted to perform with the web services, to retrieve the data, to insert the data, to delete the data, to update the data, to upsert the data. I mean, every DML operation that we have covered over here, right? Insert, delete, update, upsert, these all are a DML. And like SQL queries used to retrieve the data, right? So what we have covered so far, if you try to understand this, if you try to understand this clearly, what we covered so far is we have covered how we can perform DML plus SQL operation from the web services, right? That is what we have. So this was a kind of plain operation. This was a kind of plain operation. Now see, for the same operation,
if third party system is requesting you to perform any of the thing, any third party system is requesting you to perform any of the operation, it could be insert operation, update operation, whatever, or just a retrieve operation. Now we wanted the data at our end is a secure data. Data at our end is a secure data. So anybody cannot access that. Anyone cannot access that. So how we can say that? I mean, it's something like it's when you are trying to access your bank servers, like when you try to initiate any of the transactions. So bank will first of all authenticate you. Like bank will first of all authenticate you, or rather, when you are accessing some confidential informations of your, then again, I mean, again the web services will authenticate you first properly, and then they will allow you to interact with the object level. Then they will allow you to interact with the database level, right? Object level means database level. So अभी तक कैसा था कि हम we were just dealing कि हाँ आप वेब सर्विस फायर कर दो, हिट कर दो, आपको रिस्पांस मिल जाएगा. आपने गेट इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपको मिल जाएगा. आपने पोस्ट दे दिया तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, जो भी आप भेज रहे हो जाके इंसर्ट. बट if we are working in a secured environment, and for that secured environment, if I wanted, if we are working in a secured environment, for example, if we are working inside a secured environment, okay, this environment is secured. Let's consider that we wanted to develop a web service for a secured environment. Now what does the secured environment means? What does the secured environment means? Okay, the data is not accessible, data is not exposed directly to anybody. मतलब अगर if there is a web service, and through this web service you can access the data, and if any of the third party system, is requesting you कि please provide me this data from the account object, so you are not directly, you are not directly supposed to give the data. जैसे उसने मांगा वैसे उठा के दे दो, नहीं. we will first of all there will be a channel in between, there will be a channel, and that channel will first of all authenticate you. That channel will first of all authenticate you whether you are the right person to access this data or not. If you are a right person, you are holding every credentials whatever is required to access this data, then you are allowed to go and interact with web service. Otherwise you will be restricted in here itself. So basically, that whenever we are building the web service to access secure data, you know that data is not exposed directly to everybody, right? That time we actually go with a kind of integration called as OAuth authentication integration. OAuth authentication integration. Okay, that time the OAuth stands for open authentication. That means this authentication is open for everybody. Everyone, those who wanted to access, they first of all required to get authenticated. If you are not an authenticated person, if you are not an authorized person, you can definitely you cannot interact with the web service. So what we are creating, what we are understanding right now, is actually what previously what you did. Anybody, there's a web service and there's a data. Okay, this is the object. For example, let's say this is the object. It could be any of the object, and then there is a web service, and then there is a web service, and these are inside Salesforce. Now anyone from the third party system, those who are having the endpoint URL, they request this web service. Okay, they request this web service and they can access the data. They make a request to the web service, and web service in response will perform whatever operation like insert, update, delete, or save, retrieve, and they'll return to the web service. Web service will going to return it to third party. This was the flow. So it was like it was anyone who have the credential, anyone who is having the endpoint URL, they can directly hit the web service, and web service is going to give the response. Now what we want, we don't want this to get happen directly. Rather, what we are proposing is like if we are working in a secured environment, so the one who is requesting to the web service, the third party system, they first of all required to make a request. They first of all required to make a request to something called as authentication server. Now this particular module will be verifying whether this particular person, whether this particular system is authorized to access web service or not. Now based on some credentials, now how to create that credentials and everything, what are those parameters that we are learning inside your open authentication. Okay, that we are actually learning inside your open authentication. That means in front of your web service there is a module standing.
In front of the web service, there is actually one of the module standing. It's just like, when you go to the shopping mall, when you go to the any places, any public area, for example, malls are there and some of the good restaurants are there, or maybe some other places. You see that the guard is standing and he is going to check with you, probably with that temperature guns, or maybe he will frisk you with that machine, that whether you are carrying something wrong or not, and you are carrying some weapons or what. So they will first of all perform they will first of all check whether you're a right person to be to be allowed inside that public place, inside that building or not. So based on certain credentials, this server will going to authenticate you. And only after authentication, you are supposed to hit the URL, you are supposed to hit the web service. Web service will going to do whatever, and then the responses get back. So whenever we are designing any such type of authenticated web service, then we go with the OAuth authentication. And in real time, every web service only works under OAuth authentication. Although this was just an example how the web service could be made to insert the data, how the web service could be made to retrieve the data, how the web service could be made to put the data, patch the data, update data, upsert data, whatever. These were minimal operations just. But every web service internally actually works under OAuth authentication process only. Right? Connect. I mean, try to understand that. In real time, this is what actually happens. So this diagram, I have tried to show you the same thing. Okay. This is my third party system. This third party system wanted to access some of the web services, some of the operation it wanted to perform. For that, there's a web service has been written inside your Salesforce instance. But this third party system cannot directly go to the Salesforce and make a request. In between, you can see there's something called as authorization server. In between, you can see there's something called as authorization server is standing. So whatever the request this third party system will going to make it, first of all, it will make a request to the authorization server. Now what this request should have and everything, wo hum padhte hain abhi. We are gradually going deep and deep and deep. Right now we are into the shallow part. Right now we are discussing that shallow part of the concept, and gradually we are going towards the deep. Right. So this third party system will going to make a request to whom? To the authorization server first. Authorization server will decide whether this third party system, whether this request should be, it's an authenticated request or not, whether this person is allowed to access this web services or not. And if everything goes fine, the request has been forwarded. See, the request has been forwarded to something called as your Salesforce instance. There is a concept of connected app and everything will happen. Don't worry about that. And after that, the web service has been hit, the response is going to be get generated. That response will again pass from authorization server to the third party system like this. So this completes actually is an overview. What does OAuth authentication, open authentication actually stands for? And this is the real-time integration. This is generally nobody touches this. Try to understand. Nobody touches this because this actually requires a very deep understanding of integration. And the one who actually have performed the integration in real-time projects, they could explain you. They could only the person, if they know how to explain, they could explain you. Otherwise, this is something, nobody used to touches this. You will be amazed that people generally, when they taught the integration, how come this is possible that people used to convert the entire syllabus of Salesforce in like 2 months or 3 months? Because, pehli baat to nobody actually taught you the integration. Everybody has everyone doesn't know the integration, first of all, right? And even if they start telling you the integration, they will just show you how to consume the web services. How to consume the web services. How you can write down the web services to get the data from any third-party system. Like get the data from, we also have data. We started the same way. But then we don't stop over there. We have learned again, we have gone far and we have done so many other things as well. So what Dave is going to tell you, like how we can consume the third-party web services. How we can get the data from any web service like weather map, and how we can get the data from some website like postal pin code APIs, how we can get the data from some good websites, जैसे मैंने आपको वो यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल सॉल्व करके दिया. So up to this probably एक तो इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे नहीं और पढ़ाएंगे नहीं तो सिर्फ यहाँ तक पढ़ाएंगे कि how we can become the consumer and how we how to consume the web services, how could get the data from them. That's the only thing. But then how become provider, how we becomes provider, वो generally कोई बताता नहीं कि how to write down the web services that could retrieve the data, the web services that could insert the data,
the web service that could delete the data, that could update the data, that could upsert the data, वो नहीं। उस पर भी आगे जाके OAuth ऑथेंटिकेशन पढ़ाना ये बहुत बहुत रेयर होता है, लेट मी टेल यू दिस। बट कैसा है कि मैंने काम किया है, आई अंडरस्टैंड दिस, और मेरा तो पहले ही प्रोजेक्ट, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई स्टार्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेशन इटसेल्फ। मैं तो अपनी शुरुआत में सबसे पहले प्रोजेक्ट में, व्हेन आई वाज स्टार्टेड वर्किंग इन सिनॉप्टेक, तो मैंने तो शुरुआत ही की थी पहले प्रोजेक्ट से, जो कि इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट था। सो कैसा होता है कि बेसिकली इसलिए मैं तुमको वहां तक लाके दे रहा हूँ। दैट इज द रीजन यू नाउ कैन, इफ समवन आस्क यू कि यू हैड you done the integration, you can say yes, I can done that, I have done that in integration. What you have done, you can say I have written the APIs as well. I done the integration for consuming part as well as the provider part. That means I know how to consume third party website, at the same time I still know that how we can generate the APIs so that we could become the providers, right? And do you have worked on OAuth authentication? Yes, of course, because entire integration practically in real time is always done under the OAuth authentication process. We never expose, we never expose our web services, we never expose the data of Salesforce directly to everybody, right? It's not www. It's not actually World Wide Web. That's a closed interface. That's a closed environment. And only the authenticated web services, only the authenticated persons, only the authenticated requests are supposed to be get inside, and they are, they are supposed to get retrieve the data. So every real-time integration, whenever you are becoming a provider, and you are providing something from the Salesforce, understand this. When you are becoming a provider, and you are providing somebody's requesting, so that somebody's requesting, he's actually a consumer, he's requesting something to you and you are providing the data. So whenever you are providing something from the Salesforce, from any of the good web service, that always in the real time is done under your OAuth authentication process. There's always an authorization server who's going to see whether this request is an authenticated request, whether this person is allowed to get the data from Salesforce or not. So in real time, every request to the web service is always made under your OAuth process. That's a real time integration, let me tell you. That's a real time. We never expose data openly to everybody outside in the world, right? We always authenticate whether the request is a genuine request or not, whether the person actually is being allowed to access our web services or not. So that is what. So you can now understand why this topic is essential and why I'm keeping this in the last. Because before that, there are so many things you should learn. We started this from like what's the JSON, that's what the basic thing, and then we started with like how we can consume the web services. First of all, let's become a consumer. Let's understand how we can hit the web service and get the data and pass the data. You know, we have learned like how we can generate the data from JSON generator, how we can pass the data, what does it mean by serialization and deserialization process. That was the first thing. Second, we learn like how we can, how we can hit the APIs. Third, how we can become the provider. Now, once you are becoming the provider and you understand different operations, how we can write down the web services for retrieving the data with get method, HTTP get. How we can write down the web services to insert the data with HTTP post method. How we can write down like the web service to update the record, existing record, with the HTTP put method, for upsert HTTP patch method, for delete HTTP delete method, right? Now let's understand if you, if you're writing this in the real time, when someone says you, please write down one API, please write down one web service. Okay, API web service is one and same thing, by the way. So if someone in real time project he is asking you, can you please write down, can you please create an API for me so that if somebody is trying to insert a record, he can insert, you will say, yeah, definitely I will do that. It requires HTTP post method only. I'll create a program for that because I done it in my training, I have done it. And you are creating that, and you are creating that web service, but then you don't know how actually things are implemented. So this is not going to be good for your real-time experience, right? So understand this, whenever we are becoming a provider and when we are providing it, when we are exposing the data to outer world, we always expose it under the guidance of authorization server, right? We never expose it directly to anybody else. We always do this within, within the scope of your, for example, authorization server. And that's why every integration as a provider, every integration in real time is always done under OAuth process, under open authentication process. Okay, that is the importance of this topic. Chalo.
तो अभी तुमने जितनी भी वेब सर्विसेज बना रखी है, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, पैच करने के लिए, अगर तुमने बनाई हो, रिट्रीव करने के लिए, वो सारी तुम इंप्लीमेंट करोगे इसके अंदर। आई गोइंग टू टेक वन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल लूंगा, जो कि पहला एग्जांपल हो कि OAuth ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से कैसे आप एपीआईज को हिट करें। एंड यू विल एक्चुअली, इफ यू ऑलरेडी हैव द कोड, यू जस्ट रिक्वायर टू फॉर्म द ऑथराइजेशन सर्वर्स फॉर दैट। ठीक है। सो व्हाट वी डू इज लाइक, व्हाट वी एक्चुअली डू इज लाइक, ठीक है, सी, व्हेन वी गो फॉर दिस प्रोसेस, I have written this out. Testing. So when we actually go with this process, when we go with this process, what the first thing we do is like, we go to the Salesforce, and the first point is like, we create a connected app. We create something called as connected app. As in step number one, what we do, we create something called as connected app. We create the connected app. And then the second thing would be like, I'm just telling you the process. I'm just telling you the process. The first thing what we do is like, we create a connected app. Now, when we create this connected app, it requires two things. Client ID, it will going to give us, it will going to return us two things called as client or consumer ID, yeah, client ID, yeah, client ID and client secret. These are the two things. Client ID, bolo ya phir client key, and client secret. These are the two things. These are the two essential things that it's going to request. Okay. So when we create a connected app, the first thing what we require to do is to create a connected app. So I'm going to show you the process. Don't worry. And I'm going to show you that process how we can create a connected app. So the first requirement is to create a connected app. Connected app will return you something called as client secret and client key. Okay. मतलब client ID and client secret बोलते हैं. So that was the first thing. Then second thing is like, the second thing you require to create a web service. आपको एक web service बनानी पड़ेगी. Okay. And then third will be like, third will be your consumer. Your consumer will request you authorization. Your consumer, it will not directly going to make the request to server, to the web service. Rather, it's requesting, it's generating a request. The client is requesting, and for this client, we are using Postman. For this, we are going to make a use of Postman. Postman is that application with which, we test our code, what we have generated. ये जो पर्टिकुलर पाथ यहाँ पर जो बना रहे हो आप, उसको आप टेस्ट करोगे विद द पोस्टमैन, right? So we will assume that postman is at our client, and postman will going to make a request. Now when this client is requesting, this request consists of few things. It consists of client ID, it consists of client secret, it consists of username, password, and grant time. These are the five parameters. That a request will contain. And this is one of the interview question. In OAuth authentication process, when a client is making a request, what are the parameters that request consists of? The request consists of five parameters: client ID and client secret, जो कि यहाँ से मिलता है. अब यहाँ से कैसे मिलता है? मैंने आपको बार बार कहा है कि इंटीग्रेशन इज नॉट अ सिंगल मैन जॉब. इंटीग्रेशन रिक्वायर्स टू पार्टी टू बी गेट इन्वॉल्व. So we inside the Salesforce, if I am a developer, okay, I require to share this consumer ID and consumer secret. For example, Sohail is my client. I'm developing this for the Sohail. तो आई विल गोइंग टू शेयर, बिकॉज ये कनेक्टेड ऐप मैंने बनाया है, कंज्यूमर सीक्रेट कंज्यूमर की मेरे एंड पे जनरेट हुई. सो आई बी गोइंग टू शेयर दिस विद अ प्रॉपर चैनल. जैसे कि मान के चलो कि ईमेल से विथ माय ऑफिशियल आईडी आई विल बी टेलिंग दिस टू सोहेल कि सोहेल, whenever you are making a request, Sohail, whenever you are constructing an URL, your URL, first of all, you require to make a request to the authorization server, and your request must consist of five parameters. What are those five parameters? Client ID and client secret. Client ID and client secret I will going to give you. Your username and password. Now username and password. So in the Salesforce, we create the user. You know this. Okay, only the authenticated users can access the Salesforce. See, here also you created so many users, right? Here also you created so many users. तो मैं क्या करूंगा, I'll create a user for sales. सोहेल के लिए एक यूजर बना के रखूंगा, जैसे कस्टमर यूजर या फिर डेवलपमेंट यूजर. ठीक है. से लेट्स अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट यूजर इज द सोहेल अख्तर. तो सोहेल अख्तर का क्रेडेंशियल आई ऑलरेडी हैव क्रिएटेड इनसाइड माय ऑर्ग. सोहेल इज आर क्लाइंट. तो क्लाइंट का एक आईडी तो होता ही होता है. क्लाइंट का एक आईडी हमेशा होता है ना. वी व्हेनेवर वी वांटेड द क्लाइंट टू बी टेस्ट, तो क्लाइंट का अपना जो होता है, क्लाइंट इज आल्सो हैविंग वन ऑफ द आईडी इनसाइड आवर सेल्सफोर्स. लेट मी शो यू दैट. लेट मी शो यू दैट. अरे यार, चलो बाद में दिखाऊंगा. पासवर्ड चेंज करने के बाद. एनीवेज, सो तो सोहेल का एक लॉगिन होगा हमारे पास. वी क्रिएटेड अ सोहेल्स आईडी इनसाइड द सेल्सफोर्स. ठीक है. तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है सेल्सफोर्स आपको डालेगा. एंड ग्रांट टाइप मैं बताता हूँ ग्रांट टाइप क्या होता है. ठीक है.
तो ये 5 पैरामीटर के साथ, विद ऑल दीज 5 पैरामीटर्स, विद ऑल दीज 5 पैरामीटर्स, सोहेल विल गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ रिक्वेस्ट. वो रिक्वेस्ट आएगी आपके अथोराइजेशन सर्वर के पास. Authorization server will going to evaluate whether the request is authenticated or not, whether the request is a right request or a wrong request, based on all these parameters. If the client ID is matching with the client ID, client secret is matching with the client secret, username and passwords are matching or not. If everything matches, then this means this person is an authenticated person. तो अगर ऑथराइजेशन सर्वर ने अप्रूव कर दिया कि या दिस रिक्वेस्ट, I can see that request is authenticated request. The request is a kind of okay request. So this authorization server will generate a response, and response will contain access token. Response will contain the access token. This is very important term. The response will generate. अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे आप, अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हो, अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हो. अभी सारा communication, every communication is going between you and authorization server, between your third party system and authorization server के बीच का चल रहा है. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन, फिर से समझो, ये पूरी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. द थर्ड पार्टी सिस्टम एज एन स्टेप नंबर 1, ठीक है, इज गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट टू होम, रिक्वेस्ट गोज टू ऑथराइजेशन सर्वर ओनली. नाउ रिक्वेस्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 पैरामीटर्स, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, यूजर नेम, पासवर्ड एंड ग्रांट टाइप. ये सब कहां से आता है मैं बता रहा हूँ, पहले आप डायग्राम समझो, बाद में एक एक स्टेप निकाल के समझाऊंगा मैं. सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ दिस रिक्वेस्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ, दिस रिक्वेस्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 पैरामीटर्स, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट. एक भी अगर इसमें मिस हुआ ना तो रिक्वेस्ट जो है ना वो डिनाई हो जाए. एक पैरामीटर भी अगर मिस हुआ तो रिक्वेस्ट डिनाई हो जाए. Now this request must consist of something called as client ID, client secret, username, password and grant type. So the request is now submitted to authorization server. Authorization server will cross verify whether the ID is matching with the connected app. ये देखो, there's a communication channel between authorization server and Salesforce. Authorization server will going to manage this. Okay, authorization server, and it's a separate server. इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखो, there's a separate URL for that. We will require to always use this URL, login.salesforce.services. से आप लिखते थे ना apex rest लिखते थे. In the same way, there's a services tab will be going to bring you to the authorization server, where what you wanted to perform, OAuth and then token. This is actually, this is actually the request. We are going to make a request. We are going to make a request to authorization server. And how we are going to make a request? Through some URL. वो URL क्या है? वो URL क्या है वो मैं बताता हूँ. That token must consist of all these 5 parameters. यहाँ तक URL सेम रहेगा. Let me try to show you. एक स्टेप से आगे बढ़े. So if I wanted to request see, the URL is login.salesforce.com/services OAuth and then token. ठीक है, अब यहाँ तक ये पूरा कॉमन है. Every time whenever you make a request, up to every OAuth request must have up to this. ठीक है, up to this it must always have this. ये हर बार रहता है, up to this OAuth grant question mark, because whenever we wanted to parameter, that parameter comes under question mark. ये आपने सीखा हुआ है. इतना URL हमेशा सेम रहता है, उसके बाद की चीजें बदलती है. कि when you are requesting something, ठीक है, when you are requesting something, your request must have grant type. ठीक है, your request must have grant type, and your request must have username, and your request must have password, and your request must have client ID. ठीक है, and your request must have client secret, and one more thing is redirect URL. ठीक है, and your request must have redirect URL. See, these are the parameters what you require for. So how you are going to request, how the client is going to request authorization server, how the client is going to request authorization server with the help of an URL. That URL is fixed for every integration. This is the fixed. It's not going to be get changed. हाँ, उसके बाद के पैरामीटर सबके अलग अलग है. पैरामीटर सबके अपने अपने रहते हैं. ठीक है, पैरामीटर सबके अलग अपने अपने रहते हैं, बट URL फिक्स है. Whenever you wanted to make a request, you should call this URL. So what is URL? This is your URL.
दिस इज योर URL, ठीक है। HTTP login.salesforce services OAuth token. Now it must have all those 5 parameters. Grant type क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, क्लाइंट आईडी क्या है, क्लाइंट सीक्रेट क्या है, और आखिरी में एक चीज होती है रीडायरेक्ट URI जो भी है। तो यहाँ बेसिकली यहाँ बेसिकली ये सारे पैरामीटर्स किस तरह से सप्लाई करना मैं बताता हूँ, ठीक है। तो एक एक पे आते हैं। सबसे पहले ग्रांट टाइप। अगर आप देखो ओ ऑथ ग्रांट टाइप्स, ओ ऑथ ग्रांट टाइप्स कितने कितने तरह के होते हैं। तो ओ ऑथ ग्रांट टाइप्स में अगर आप जाओगे तो ओ ऑथ में ग्रांट टाइप्स अलग अलग किस्म के। उसमें से हम जो कर रहे हैं वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है। एक्चुअली ये देखा है तुम लोगों ने, मतलब व्हेन यू इवन हैव सीन दिस, आप जब डेटा लोडर यूज कर रहे थे, व्हेन यू वेर यूजिंग डेटा लोडर, इफ यू वांटेड टू अपडेट, तो इट विल आस्क यू कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर टू ऑथेंटिकेट है। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, एक होता है ओ ऑथ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर टू बी गेट ऑथेंटिकेटेड। तो ऑथेंटिकेशन के कितने तरीके होते हैं। ऑथराइजेशन, आई रिक्वायर टू सर्च फॉर दिस, लेकिन है मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब बट द मोस्ट कॉमन वे, आई मीन द मोस्ट frequently used is your password authentication process. The frequently used is your password authentication, ठीक है। एनीवेज मैं कभी डॉक्यूमेंट निकाल के दे देता हूँ इसका कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांड टाइप्स। ग्रांड टाइप्स कितने, हाँ ये देखो। ग्रैंड टाइप्स आर लाइक क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड वाला हम यूज कर रहे हैं, रिफ्रेश टोकन, ठीक है, और डिवाइस ऑथराइजेशन ये होता है, टू वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ऑल्सो होता है। तो ग्रैंड टाइप अलग अलग तरीके के होते हैं कि वेन एवर यू आर एक्सेसिंग अ वेब सर्विस, तो वेब सर्विसेज को, वेब सर्विस विल ग्रांट यू द एक्सेस। उसमें अलग अलग तरीके होते हैं हाउ टू एक्सेस द वेब सर्विस। तो व्हाट वी आर यूजिंग आउट ऑफ दैट इज पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड, रिसोर्स ओन पासवर्ड, पासवर्ड बिकॉज वी क्रिएटेड फॉर एवरी यूजर हैज अ पासवर्ड, वी आर फॉलोइंग दिस। तो इसलिए हमारा जो ग्रैंड टाइप है ना, ग्रैंड टाइप क्या है हमारा, पासवर्ड है। और नॉर्मली यही रहता है इन द 95% केसेस, दिस इज द ओनली यू अनलेस एंड अनटिल यू हैव समथिंग स्पेशल केस, देन वी गो फॉर क्लाइंट क्रेडेंशियल्स या रिफ्रेश टोकन्स एंड एवरीथिंग। बट ग्रैंड टाइप व्हाट वी आर यूजिंग इज पासवर्ड, ठीक है। तो देयर आर 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैंड टाइप जो वेब सर्विसेज में यूज होते हैं। तो दिस इज व्हाट द योर I mean your grant type would be like password. Grant type is password. अब चलो, तो क्या होता है कि अभी ये फ्लो को पहले खत्म कर देते हैं, फिर मैं एक्चुअल एनवायरनमेंट में आता हूँ। क्लाइंट विल गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट टू ऑथराइजेशन सर्वर विद द हेल्प ऑफ दिस यूआरएल, ठीक है। नाउ दिस यूआरएल इज गोइंग टू बी गेट कंप्लीटेड। टोकन के आगे क्वेश्चन मार्क रहता है, और क्वेश्चन मार्क के आगे क्या क्या चीजें रहती है आपका, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, यूजर नेम, पासवर्ड, ग्रांट टाइप, एंड देन रिटर्न यूआरएल भी रहता है। तो इतनी सारे 5 पैरामीटर्स रहते हैं, वो सारी रिक्वेस्ट जाती है, दैट होल रिक्वेस्ट गोज टू योर अथराइजेशन सर्वर। अथराइजेशन सर्वर विल गोइंग टू कंपेयर दिस, है ना, अथराइजेशन सर्वर विल गोइंग टू कंपेयर दिस विथ योर कनेक्टेड ऐप। तो उसमें क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, और फिर यूजर अकाउंट डिटेल्स में जाके देखता है कि यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्हेन ऑल दीज 4 to 5 पैरामीटर्स आर मैचिंग, ठीक है, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट आती है कि यस दीज ऑल एवरीथिंग हैज बीन मैचिंग, वो हो जाता है अथराइजेशन सर्वर को। तो अथोराइजेशन सर्वर विल गोइंग टू प्रोवाइड यू समथिंग कॉल्ड एज एक्सेस टोकन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो योर रिस्पॉन्स कम बैक एंड दैट रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ द मेन थिंग, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल, आप देखने वाले हो अभी पोस्टमैन ऐप पर, but the most important thing is access token, is access token. Now what you going to make, you will going to make a request। अब आप रिक्वेस्ट करते हो वेब सर्विस को, now you are authenticated person, तो आप डायरेक्टली आप वेब सर्विस को रिक्वेस्ट कर सकते हो। दैट रिक्वेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ द एक्सेस टोकन। तो यहाँ पे आने के बाद में, यहाँ पे आने के बाद में रिक्वेस्ट अलोंग विद द एक्सेस टोकन, तब वेब सर्विस अलाउ करती है उसका डेटा जो भी है, रिट्रीव है, पोस्ट है, गेट है, वो, एंड देन इट विल गिव यू द रिस्पॉन्स अलोंग विद द डेटा। So this is how actually the real-time integration is being done. This is how actually the real-time integration is being done. चलो अब यही सेम चीज जो है मैं आपको वन बाय वन बताऊँ। तो एज एन स्टेप नंबर 1 वी फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर टू क्रिएट अ कनेक्टेड ऐप, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू योर Salesforce instance and I'll showing you how we can create a connected app।
connected app is created the same way you created an application. So go to setup, go to build and create. Okay, create app. What I wanted to create, I wanted to create application. We created some application, Skyline, CloudForce, Merck Incorporation, है ना? The same way, same way. So if you just scroll it, ये app the normal app. If you just scroll it onto this page, you will find something called as connected apps. Like we haven't created any connected app so far, so I'm creating this. So new connected app, and let's give the name to the connected app. So let me give any name for that. Create a web services to get the account parts. Okay. So I'm giving this name as maybe OAuth OAuth connected app. Okay, this is what the name I'm giving. Contact email you here you can mention. I mean, if this is going to be get hit, कहाँ पर आना चाहिए. What I will be doing is like I'm going to use your batch ID for that. So this is the ID on which I wanted to create and I mean get the emails and everything. So I'm mentioning this. This is your and by setting canvas app set. Yeah. So after entering these details, if you wanted to enter the contact number icon, we can do it. Important is go to the enable OAuth setting, API setting. Here there's a checkbox enable OAuth setting. So just enable this. Just make a click on that. Now here it will ask you for the callback URL. So after hitting this URL, after hitting this, where should you will come back? So for that, well, I'll be doing just copying this URL. यहाँ पर वापस आना चाहिए. इसमें से मैं इतना part delete कर देता हूँ. So this is my URL callback URL. ठीक है. After hitting where should we come back? Callback URL जो है हमारा अपना instance का ही दे देते हैं हम लोग. ठीक है. And then selected the OAuth scope के यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि what are the operations that are permissible. क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं. तो लाइटनिंग एप्लीकेशन विजुअल फोर्स सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे. तो आई एम सिलेक्टिंग फुल एक्सेस विद दिस कनेक्टेड ऐप. द वन हु इज रिक्वेस्टिंग can have a full access everything. Otherwise you can be a little bit selective at this instance and you can according to your operation select the resources. But usually what we do is like we provide the full access, right? That's what we usually do. But here you can put up some restrictions as well. Okay. Yeah, these are the basic settings what you require to create a connected app, and let me save this. So the changes will take some time. It's obviously required to take some time with the connected app. So deleting a parent org is also deletes all connected app. That's how so it will ask you that it will going to require some time. It's going to require some time to create this. And whenever this connected app is created, probably you will also receive an email over here. And that's a probable thing. Exactly not sure about this. We can going to check this out. So what we can do meantime is like I can just sit, relax, and I can just or otherwise what we can do is like we can go for some other things. We can go for some other thing. I mean, meanwhile the connected app is preparing. What we can do is like we can collect the details. We can collect the details and everything, right? The usernames and password, and then we can create the web service as well. Okay. So what's our use case? The use case is like to get all of the account records. Now we already have created a web service for that. I try to show you that. मैंने वो एग्जांपल लिया जो आप पहले से बना चुके हो ताकि आने वाले सारे एग्जांपल्स के लिए आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ. This was the first example. See, create a RESTful web service to get all of the account record. So we already had created the code. हमने पहले से बना रखा है ना. Account manager service नाम से I already had created a web service for that. ठीक है. एक account manager service बना रखी है जिसके through somebody can access all of the account records. ठीक है. Now because ये सारे account दे देगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी changes करता हूँ. कोड मेरे पास already available है but मैं limit clause लगाता हूँ. तो create a web services सारे रिकॉर्ड नीचे get
ऑल के बजाय गेट 5 अकाउंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिमिट लगा देता हूँ। सो आई एम ओपनिंग दिस क्लास अकाउंट मैनेजर सर्विस को ओपन करता हूँ और कोड में मैं जरा सा चेंजेस करता हूँ। मीनवाइल जब तक ये बना रहा है, कनेक्टेड ऐप बनने में थोड़ा सा समय लगता है, तब तक हम थोड़े बहुत जो भी हमको एडजस्टमेंट करनी है वो यहाँ पे करके रख लें। अकाउंट्स मैनेजर सर्विस, अकाउंट्स मैनेजर सर्विस। तो दिस इज द वेब सर्विस, इट रिक्वायर्स यू टू क्रिएट द वेब सर्विस, लेकिन अपने पहले से बना रखी है। आई एम जस्ट मेकिंग वन, just making one thing over here, order by and limit is 5, ठीक है। That is what the change is, because instead of returning me everything from the account object, just return me, just get me the 5 account records, that's it, ठीक है। तो like step number 1 is to create a connected app, so we are on to that process, The second is your case manager service, sorry, your web service requires to get created, that already have done, okay। step number 2 हो गई है, ये भी हो ही गया है, बस मैं रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद में अकाउंट की डिटेल्स चाहिए हमको, यूजर नेम पासवर्ड। मैं यहाँ पे एडमिन अकाउंट यूज करने वाला हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एडमिन अकाउंट। तो एडमिन अकाउंट जो है हमारा, दिस इज द अकाउंट, सिस्टम एडमिन अकाउंट, एंड दिस इज द यूजर नेम। So this is my username. I'm going to copy and paste it over. As in step number 1, you require to have this. This is the username and password. This is the password for your batch. Okay. Okay. So let me collect all those parameters. Meanwhile, क्या क्या चाहिए हमको? We require grant type. Grant type is part first. Current username. So current username is this. ठीक है. And password is this. Okay. Client ID. Client ID I'm going to get it from the connected app जो मेरा prepare हो रहा है. Secret भी यहीं से मिलेगा. Redirect URL जो है वो I have set this. वो मैंने set कर लिया. ठीक है। तो अभी मैं एक एक चीज यहाँ पे इसमें एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू एडजस्ट एवरीथिंग ओवर हियर। पहले मैं यूआरएल बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलो मीनवाइल मैं पोस्टमैन ऐप भी ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन ऐप पे मुझे नया विंडो लगेगा, सो बट एवरीथिंग। तो पोस्टमैन से ही हम चेक कर पाते हैं हमेशा ओऑथ ऑथेंटिकेशन को, याद रखो। तो रियल टाइम इंटीग्रेशन में वी ऑलवेज वर्क ऑन द पोस्टमैन, इसलिए मैं बोलता था कि रियल टाइम पे हम वर्क बेंच यूज नहीं करते हैं, राइट। वी ऑलवेज यूज द वर्क। दैट आई एम क्लोजिंग एवरीथिंग। एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और जो मेरा ये रहेगा टाइप विल बी पोस्ट। मैं आता हूँ यहाँ पे, आता हूँ वापस आता हूँ। लेट मी गो टू द Salesforce and let's see कि कनेक्टेड ऐप बन गया क्या अपना। Still it is forming. It takes some time actually. Connected app requires to take some, because these changes are going to be reflected directly into metadata. So because metadata में changes हो रहे हैं, that's why it actually requires the time. It's not that simple job. Metadata में changes होने की वजह से it actually requires some time. चलो, so meanwhile मैं रिक्वेस्ट पे काम करता हूँ, और जो रिक्वेस्ट मुझे भेजनी है, ठीक है, दैट रिक्वेस्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ यूजर नेम। तो यूजर नेम है मेरा ये। चलिए मैं जब तक रिक्वेस्ट पे काम कर लेता हूँ। देखो ये तो हमेशा एज इट इज रहेगा, ये हमेशा एज इट इज रहेगा। ये दिस इज योर यूआरएल, ये यूआरएल हमेशा एज इट इज रहता है। इसके आगे के पैरामीटर, ग्रांड टाइप हम पासवर्ड ही ले रहे हैं। यूजर नेम आई एम रिप्लेसिंग दिस यूजर नेम। मेरा जो यूजर नेम है वो है SFDC। पासवर्ड जो है, पासवर्ड आपकी बैच का ये है। सो आई एम पासवर्ड ये है, पासवर्ड ये है। नाउ क्लाइंट आईडी और सीक्रेट अभी मेरा ये जनरेट होने का है, और अपना कनेक्टेड ऐप जनरेट होने, कनेक्टेड ऐप से मुझे ये दो पैरामीटर्स मिल जाएंगे। रीडायरेक्ट यूआरएल जो है, तो रीडायरेक्ट यूआरएल जो है, आई एम टेकिंग दिस यूआरएल, ठीक है। क्लाइंट आईडी और पासवर्ड तो दिख रहा है अभी यहाँ पे। स्टिल इट्स गुड टू वेट फॉर सम टाइम। जो रीडायरेक्ट यूआरएल है, रीडायरेक्टेड यूआरएल, आई विल बी टेकिंग दिस
दिस इज योर रीडायरेक्ट। दो चीजों के लिए रुका हुआ है मेरा सारा काम, वो है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो क्लाइंट आईडी सीक्रेट नजर तो आ रहा है, बट स्टिल आई वांटेड टू रिफ्रेश। ठीक है, ये हो जाएगा, डोंट। ओके। तो जब ये हो जाएगा, I mean, ये मैसेज यहाँ से हट जाएगा। बट यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कंज्यूमर की। ठीक है, कंज्यूमर की इज योर क्लाइंट की, और ये है यहाँ पे आपका कंज्यूमर सीक्रेट। सो यू कैन सी ओवर हियर दो चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे। एक आ रहा है आपका कंज्यूमर की, और दूसरा है कंज्यूमर सीक्रेट। कंज्यूमर सीक्रेट कैसे नजर आएगा? जस्ट क्लिक टू रिवील, क्लिक टू रिवील, नाउ यू कैन सी दैट एज वेल। ठीक है, तो वी आर एबल टू सी टू थिंग्स ओवर हियर। दिस इज आर दिस इज आर कंज्यूमर की, दिस इज आर कंज्यूमर की। ठीक है, कंज्यूमर की, एंड देन दिस इज योर लाइक दिस इज योर कंज्यूमर सीक्रेट, दिस होल थिंग। तो वी रिक्वायर टू कॉपी दिस बोथ ऑफ देम। तो सबसे पहले मैं कंज्यूमर की कॉपी कर रहा हूँ। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉपी का बटन है, जस्ट कॉपी इट। और कंज्यूमर की इस क्लाइंट आईडी, यहाँ पे उसको पेस्ट करो। ठीक है, एंड देन क्लाइंट सीक्रेट मतलब होता है कंज्यूमर सीक्रेट। क्लाइंट सीक्रेट मतलब कंज्यूमर सीक्रेट, उसको मैंने कॉपी किया एंड आई एम पेस्टिंग इट ओवर। ठीक है, चलो ये सारे पैरामीटर्स रेडी हैं। अब रिक्वेस्ट को सही तरह से एडजस्ट कर ले, रिक्वेस्ट को सही तरह से एडजस्ट कर ले। देयर विल बी देयर इज नो स्पेसेस इन बिटवीन। ग्रैंड टाइप हो गया, ग्रैंड टाइप के बाद में एंड, एंड के बाद में यूजर नेम, स्पेसेस नहीं चाहिए बिटवीन। ठीक है, यूजर नेम, पूरा यूजर नेम आ गया। यूजर नेम के बाद में फिर से एंड के बाद में यूजर नेम के बाद में है पासवर्ड, ये आ गया मेरा पासवर्ड। पासवर्ड के बाद फिर से एंड है, एंड उसके बाद क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी आ गई। क्लाइंट आईडी के बाद में फिर से एंड है, सो एंड क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, यूआरएल में कभी भी स्पेसेस नहीं चाहिए। वो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने अलग अलग करके दिखाया आपको, ताकि समझ में आए। बट बाद में इसको इस तरह से एडजस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज ये हिट नहीं होगा। नाउ दिस बिकम्स द कंप्लीट यूआरएल। ये है आपका कंप्लीट यूआरएल। ठीक है, इसमें ऑथोराइजेशन सर्वर को एक्सेस करने के लिए ये यूआरएल यूज होता है, जिसके साथ में जो जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो सारे पैरामीटर्स दिए हमने। ग्रांट टाइप है पासवर्ड, यूजर नेम है ये यूजर नेम, पासवर्ड ये है, क्लाइंट आईडी ये है, एंड क्लाइंट सीक्रेट ये। हाँ, एक एडजस्टमेंट और करनी है मुझे यहाँ पे। पासवर्ड डायरेक्टली पासवर्ड से लॉगिन, आपको याद है क्या एक चीज? इफ यू रिमेम्बर वन थिंग, डेटा लोडर जब मैंने आपको पढ़ाया था, डेटा लोडर के वक्त, डेटा लोडर्स के वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। डेटा लोडर्स के वक्त क्या हुआ था, तो अगर याद हो, अगर तुम लॉगिन करते हो तो पासवर्ड होता है, वो तो नहीं बोला था मैंने, पासवर्ड बोला था। तो आपका यूजर नेम प्लस पासवर्ड था, बट योर पासवर्ड वाज हैविंग टू थिंग्स। पासवर्ड में दो चीजें थी। ठीक है, तब डेटा लोडर्स के नोट्स पे चलते हैं अपन। सो दो सो डेटा लोडर्स को कैसे लॉगिन किया था, तो तुमको अगर याद होगा, डेटा लोडर्स में आपको पासवर्ड के साथ सिक्योरिटी टोकन भी देना पड़ता है। तो अगर ये मेरा पासवर्ड था, साथ में मुझे क्या देना पड़ा? सिक्योरिटी टोकन। अब ये चीज यहाँ भी आती है, बट ये चीज यहाँ भी आती है। पासवर्ड सिर्फ पासवर्ड नहीं होता है, पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटी टोकन। लेकिन आप अगर गौर से देखो तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अपना पासवर्ड यूज किया है, सिक्योरिटी टोकन यूज नहीं किया। एक्चुअली ये हिट नहीं होगा, एक्चुअली ये हिट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आई मेक अ सेटिंग। या तो मैं ये करूं कि पासवर्ड के साथ सिक्योरिटी टोकन दूं। अच्छा, सिक्योरिटी टोकन हर बार नए देने पड़ते हैं, हर बार एवरी टाइम यू रिक्वायर टू डू दिस सिक्योरिटी टोकन। तो हर बार इसको, इसकी नेसेसिटी हटाने के लिए क्या होता है, सेल्सफोर्स में एक सेटिंग है, आओ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, हर बार ये आई मीन एवरी टाइम सिक्योरिटी टोकन सप्लाई करना पड़े रिक्वेस्ट के साथ, तो दैट्स अ क्वाइट टीडियस जॉब। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कैन डू वन थिंग। आपने जो यूजर नेम लिया है, कौन सा यूजर लिया है आपने? आपने लिया है एसएफडीसी ट्रेनिंग बैच 201 यूजर। तो लेट्स गो टू दैट यूजर फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स गो टू दैट यूजर। ठीक है, ये है वो यूजर, ठीक है, जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी प्रोफाइल पे जाओ, सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल पे जाओ। ठीक है, ये सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल, ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। इसकी प्रोफाइल पे मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं, और वो चेंजेस हैं, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ नहीं है, ये आप लिख लेना। लॉगिन आईपी रेंजेस,
लॉगिन आईपी रेंजेस पे जाना है मुझको, तो लॉगिन आईपी रेंजेस में, ठीक है। तो व्हेन यू वांटेड कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है, ये जो पर्टिकुलर यूजर है, जो हमारा क्लाइंट रहता है, यूजुअली ये हमारा क्लाइंट रहता है। अभी तो मैंने सिस्टम एडमिन ले लिया, बट यूजुअली ये क्लाइंट रहता है। यूजुअली जो रिक्वेस्ट है, बिकॉज क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है ना, तो ये वाला जो यूजर है वो क्लाइंट है अपना, ऐसा मान के चलो। तो ये जब ये रिक्वेस्ट बना रहा है, तो एक्चुअली प्रोसेस ऐसी है कि पासवर्ड, सिर्फ पासवर्ड नहीं होता है, पासवर्ड के साथ में सिक्योरिटी टोकन भी जाना चाहिए। तो वो जो नेसेसिटी है वो आपको हटानी है, अगर इफ यू वांटेड टू रिमूव दैट, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं ना हर बार वो आपको बोले कि मेरा पास सिक्योरिटी टोकन रीसेट करो, फिर वो उसके मेल पे जाएगा, फिर वो हर बार इसमें एडजस्टमेंट करेगा, तो दैट एक्चुअली बिकम्स अ लिटिल बिट टीडियस। तो उसके लिए व्हाट वी डू इज लाइक, मैंने लिखा है कि आप एक नोट लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 2 के लिए एक नोट लिख देता हूँ। बिफोर पुटिंग द रिक्वेस्ट टू चेंज द आईपी रेंज फॉर द यूजर अकाउंट, ठीक है। तो ये जो आईपी रेंजेस आपको चेंज करनी है, तो लॉगिन आईपी रेंजेस में जाके न्यू करो, गिव द स्टार्टिंग एड्रेस एज 000, स्टार्टिंग आईपी एड्रेस। क्या चेंजेस करने हैं आपको, स्टार्टिंग आईपी एड्रेस इक्वल्स टू 0.0.0.0, ठीक है। एंड देन एंडिंग, एंडिंग वुड बी 255 255 255, एंडिंग इट वुड बी लाइक 255.255.255.2। सो ये क्या होता है, दिस समथिंग कॉल्ड एज डिफॉल्ट आईपी, इसको डिफॉल्ट आईपी बोलते हैं। तो 255, तो इसका मतलब ये होता है कि एनी एनी आईपी बिटवीन दिस रेंज इज अलाउड टू लॉग इन। ये होता है आईपी रेंज। तो ये जो यूजर है, ये हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, तो ही कैन लॉग इन फ्रॉम एनी ऑफ द रेंजेस। तो मैंने इसको रेंजेस दे दी। तो अब ये सेटिंग करने से फायदा क्या मिलता है पता है क्या, ये सेटिंग करने से फायदा ये मिलता है कि व्हेन नाउ ही इज रिक्वेस्टिंग समथिंग विद द पोस्टमैन, तो उसको ना, उसको आपको पासवर्ड के साथ में वो जो एक्सेस टोकन होता है, जो वो सिक्योरिटी टोकन जो होता है, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज ये सेटिंग नहीं करोगे ना, अगर ये सेटिंग नहीं करोगे, तो एवरी टाइम इट विल आस्क यू, वो आपको मैसेज देगा कि पासवर्ड रॉन्ग है। अब आप सोचेंगे पासवर्ड तो मेरा बिल्कुल सही है, फिर ये रॉन्ग कैसे है। तो इसकी ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसके साथ में एक चीज और चाहिए उसको फिर, और वो क्या है आपका, दैट इज योर सिक्योरिटी टोकन। पासवर्ड पासवर्ड सिर्फ पासवर्ड नहीं होता है, पासवर्ड अलॉन्ग विद सिक्योरिटी टोकन। तो ये सिक्योरिटी टोकन हर बार रीसेट करके देना, हर बार उसको रीसेट करना, और फिर उसके ईमेल पे जाएगा, फिर वो अपने पासवर्ड में इसको एडजस्ट करेगा। तो ये नेसेसिटी को हटानी है अपने को, ये नेसेसिटी को हटाने की सिर्फ इकलौता पासवर्ड अलोन अलोंग अलोन द पासवर्ड ही शुड हैव दैट लॉगिन। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि वी आर मेकिंग सर्टन चेंजेस ओवर हियर। ये आईपी रेंजेस में चेंज करना पड़ता है, ये आईपी रेंजेस में आपको चेंज करना पड़ता है कोई यूजर की। तो ये सेटिंग करने के बाद में व्हेनेवर दैट यूजर इज ट्राइंग टू एक्सेस फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सटर्नल रिसोर्स, कहीं से भी वो एक्सेस कर रहा है, तो ही कुड डायरेक्टली हैड एन एक्सेस, उसको सिक्योरिटी टोकन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा वो मुझे क्लिक हो गया ये, वरना अपने को एरर मिलने ही वाला था, जस्ट मिलने वाला था, ठीक है। तो ये एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। उसके बाद में ना प्रिपेयर विद एवरीथिंग। अब जब हो गया आपका, लेट्स गो टू द कनेक्टेड ऐप, प्रॉब्लली अब तक बन गया होगा ये। अरे यार अभी भी बन रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट करके हिट करता हूँ, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा काम, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर पोस्टमैन ऐप। तो पोस्टमैन ऐप पे सबसे पहले मेथड सिलेक्ट करो, बिकॉज वी आर पोस्टिंग समथिंग, यू नो व्हाट वी आर पोस्टिंग। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट जॉब वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ठीक है। वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टू whom, रिक्वेस्ट टू ऑथोराइजेशन सर्वर। हम लोग ऑथोराइजेशन सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, रिक्वेस्ट मस्ट हैव फॉलोइंग पैरामीटर्स। आप ये सारे पैरामीटर्स पोस्ट कर रहे हो, आप ये सारे पैरामीटर्स को ना पोस्ट कर रहे हो। इसीलिए पोस्टमैन पे आपकी मेथड टाइप क्या रहना चाहिए, पोस्ट रहना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट यूआरएल डालना है। व्हाट यू वांटेड टू एंटर, रिक्वेस्ट यूआरएल। रिक्वेस्ट यूआरएल ये अपन ने बना के रखा है, ठीक है। दिस इज माय रिक्वेस्ट यूआरएल, ठीक है।
रिक्वेस्ट पेलोड और रिक्वेस्ट यूआरएल। ठीक है, ये हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल, ये पूरा बना रखा है मैंने, इसको मैंने कॉपी किया। आई एम कॉपिंग दिस, आई एम कॉपिंग दिस, आई एम कॉपिंग दिस, आई एम पेस्टिंग इट ओवर, आई एम पेस्टिंग इट ओवर। देखो इमीडिएटली अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स लिख के आ गए। ग्रैंड टाइप क्या आया, पासवर्ड। यूजर नेम क्या है, SFDC ट्रेनिंग बैच 201, ठीक है, ये यूजर नेम। पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड है। क्लाइंट आईडी, ये क्लाइंट आईडी। क्लाइंट सीक्रेट, ये। उसने सारे पैरामीटर्स चेक कर दिए। ये जो रिक्वेस्ट आपने दी है उसमें ये पैरामीटर्स है नहीं, अगर इसमें से एक भी मिसिंग है तो यहाँ पे क्रॉस लिख के आ जाता है। तो इसके पहले कि आप रिक्वेस्ट को सेंड करो, आपको ये देखना चाहिए, ठीक है, आपको ये देखना चाहिए। अभी आपकी रिक्वेस्ट तैयार है, चलो। अब अब मुझे बताओ कि जब आप ये रिक्वेस्ट सेंड करोगे, जब आप ये रिक्वेस्ट सेंड करोगे, अथराइजेशन सर्वर उसको चेक करेगा आपके सेल्सफोर्स इंस्टेंस के साथ। वो जाएगा कनेक्टेड ऐप में और कंपेयर करेगा क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट को। वो जाएगा यूजर अकाउंट डिटेल्स में, कंपेयर करेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंड इफ एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके, तो क्या आएगा, आपका रिस्पॉन्स जनरेट होके आएगा। एंड दैट रिस्पॉन्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी रिस्पॉन्स में, एक्सेस टोकन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्पॉन्स में क्या होगी, एक्सेस टोकन। बिकॉज व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग द वेब सर्विस, यू रिक्वायर टू पुट द एक्सेस टोकन। विदाउट एक्सेस टोकन आप वेब सर्विस से इंटरेक्ट नहीं कर पाओ। तो ऑथराइजेशन सर्वर जो रिस्पॉन्स देगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सेस टोकन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने रिक्वेस्ट फॉर्म कर लिया, नाउ आई एम हिटिंग दिस सेंड, आई एम सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट, आई एम सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट। चलो ये आ गया रिस्पॉन्स, ये आ गया रिस्पॉन्स। अच्छा ये बताओ कौन से फॉर्मेट में है ये, कौन सा फॉर्मेट है ये, एक्सेस टो, ये जो रिस्पॉन्स आया ये कौन से फॉर्म में आया है, XML जेसन, कौन से फॉर्म में आया है ये बताइए। ये जो रिस्पॉन्स आप देख रहे हो कौन से फॉर्म में है, यस। ये जो रिस्पॉन्स आया ये कौन से फॉर्म में आया, जेसन फॉर्म में आया है। देखो इसमें क्या क्या चीजें आई है, मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ, कॉपी दिस होल थिंग, और ये रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे पेस्ट आउट करता हूँ। भाई ये रिस्पॉन्स आया हुआ है, ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्स व्हाट आई हैव गेट, ये रिस्पॉन्स मिला है हमें जेसन के फॉर्म, जिसमें सबसे पहली चीज है एक्सेस टोकन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बैच चालू करता हूँ, अब करता हूँ अपना बैच चालू। मैं हाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेस टोकन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेस टोकन। उसके बाद में बाकी के पैरामीटर्स हैं, जैसे इंस्टेंस यूआरएल, कि अगर ये एक्सेस टोकन है ये सब, तो ऑथराइजेशन सर्वर जिसको कांटेक्ट कर रहा है कि जिस जिस पर्टिकुलर सेल्सफोर्स इंस्टेंस को वो कांटेक्ट कर रहा है, ये चेक करने के लिए कि भैया ये कनेक्ट, ये क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट सही है क्या, ये यूजर नेम पासवर्ड सही है क्या, तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंस, वो हजारों सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों सेल्सफोर्स ऑर्ग हैं, हजारों सेल्सफोर्स इंस्टेंस है, वो कौन सा इंस्टेंस है जिसके जिसको इसने कांटेक्ट किया, तो वो आता है इंस्टेंस यूआरएल। ठीक है, इंस्टेंस यूआरएल कौन है, 201, ये हमारा यूआरएल देखो, dev add डॉट माई, ये। उसके बाद में आईडी क्या है आपके, ये जो यूआरएल है इसकी आईडी क्या है, आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आईडी क्या है, ये दिख रहा है 00D, 00D दिख रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन आईडी इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद 00D, इफ यू रिमेंबर। ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आईडी, ठीक है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आईडी है, राइट, दिस इज योर आईडी। ओके, चलो उसके बाद टोकन नेम, टोकन टाइप्स होते हैं, बियरर टोकन, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो इसको छोड़ दो थोड़ा सा, टोकन बियरर आता है, और इशूड और सिग्नेचर वगैरह वगैरह। दो तीन चीजें जो मेरे ख्याल आप समझ सकते हो, एक तो टोकन सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से इंस्टेंस से आया है और उसकी आईडी क्या है, बाद में टोकन का टाइप क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए एक्सेस टोकन, ठीक है। ये हो गया, अभी तक कहाँ पर पहुंचे आप बताइए, अभी तक कहाँ तक पहुंचे, इस पूरे डायग्राम में आप कहाँ तक पहुंचे हो, यहाँ तक, यहाँ, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, कि भैया क्लाइंट ने रिक्वेस्ट मारा, क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट मारा तो उसके रिक्वेस्ट यूआरएल में बहुत सारी चीजें थी, 5 पैरामीटर थे, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट, यूजर नेम, पासवर्ड, ग्रांट टाइप। ये रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन सर्वर को मारा उसका यूआरएल के थ्रू। ऑथराइजेशन सर्वर ने जो भी इंस्टेंस है वो इंस्टेंस में जाके चेक करा कि भैया ये नाम से यूजर नेम पासवर्ड है क्या, कनेक्टेड ऐप में ये क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट है क्या, सब कुछ मैचिंग हुआ तो उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया। रिस्पॉन्स में ये पूरा रिस्पॉन्स है, ये पूरा रिस्पॉन्स है, ये पूरा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स में काफी सारी चीजें अवेलेबल है, 4 से 5 पैरामीटर, एक्सेस टोकन, इंस्टेंस यूआरएल, आईडी, टोकन टाइप, इशूड बाय,
इशूड एट सिग्नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए क्या है यहाँ पे, एक्सेस टोकन। अब ये एक्सेस टोकन को पकड़ के आपको क्या जनरेट करवानी है, रिक्वेस्ट जनरेट करवानी है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया है। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए पोस्टमैन, मैंने नया टैब ओपन, ठीक है, नया टैब ओपन। अब यहाँ पे जाने की बात, रिडायरेक्ट, हाँ ये वाला स्टेप नंबर 3 के जैसा लिखा है, स्टेप नंबर 2 3 जो भी है। ओपन द न्यू टैब, और आपको मेथड क्या करनी है, गेट। अभी गेट क्यों करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द वेब सर्विस। अभी ये वेब सर्विस पे डिपेंड करता है। आपने ये जो वेब सर्विस बनाई है, जो कि आपको 5 अकाउंट लाके देने वाली, उसका टाइप क्या है, गेट। उसका टाइप क्या है, गेट। आप यही वेब सर्विस को कॉल करने की बात कर रहे हो ना, यही वेब सर्विस है, इसका टाइप क्या है, गेट, बराबर। इसीलिए इसीलिए आप जो टैब ओपन कर रहे हो उसका मेथड टाइप क्या लिखोगे, गेट लिख, ठीक है, गेट। चलो ये गेट हो गया बाय डिफॉल्ट। यहाँ से क्या सिलेक्ट करनी है आपको, गेट। क्यों, क्योंकि मैं जिस वेब सर्विस को हिट मार रहा हूँ, अच्छा कल चल के पोस्ट को हिट करोगे ना तो यहाँ पोस्ट लिखना, पुट को हिट करोगे तो पुट रहना, अगर पैच को हिट करोगे तो पैच लिखना, डिलीट को हिट करोगे तो डिलीट करना। तुमको सारे एग्जांपल्स करवा के दे दिए मैंने, पैच के अलावा पैच भी समझा के दे दिया था, तब तुम कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास में सारी चीजें अवेलेबल। मतलब एचटीटीपी से अपन क्या क्या कर सकते हैं, एचटीटीपी से आप गेट कर सकते हो, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। बाकी ये एचटीटीपी की मेथड्स नहीं है, दीज आर नॉट एचटीटीपी, ठीक है। कुछ है इसमें से आपको, कुछ है और बाकी नहीं है, एक्सएमएल की है। चलिए एनीवेज, तो एचटीटीपी से मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, वो सारी चीजें अवेलेबल है। तो अभी जो वेब सर्विस मुझे हिट मारनी है उसका टाइप गेट है, इसलिए मैंने गेट सिलेक्ट किया, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, टू एक्सेस द वेब सर्विस आपको यूआरएल देना, आपको यूआरएल देना है। और ये बिल्कुल वही यूआरएल है जो इसके पहले आप दिया करते थे आपके आपके यू नो अरे यार, वर्क बेंच पे, आपके वर्क बेंच पे ना, वर्क बेंच पे भी इनफैक्ट तुम यही देते थे, वर्क बेंच पे भी इनफैक्ट तुम यही देते थे, बट वहां पे क्या है कि बचा हुआ यूआरएल वो खुद ही जनरेट कर लेता था। वर्क बेंच पे जब भी हम एपीआई हिट करते तो अपन कैसा करते थे, विल गो टू ये रेस्ट एक्सप्लोरर और मेथड्स लेके गेट। अब यहाँ पर मैं देता था, यहाँ पे मैं व्हाट आई यूज्ड टू राइट, अपेक्स रेस्ट, अपेक्स रेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं पूरा नाम देता था वेब सर्विस का। जैसे अगर मेरी वेब सर्विस का नाम है अकाउंट सर्विस, है ना, क्या नाम है इसका, अकाउंट सर्विस। तो अकाउंट सर्विस में यहाँ पे देता था, यहाँ पे आई यूज्ड टू राइट ऑन द अकाउंट सर्विस, ऐसा था, बराबर ऐसा। तो यहाँ भी इसके पहले का पैरामीटर है क्या, नहीं है, ठीक है। इसके पहले का पैरामीटर वो खुद ही वर्क बेंच जनरेट कर लेता है। क्यों जनरेट करता है, जैसे अभी तुमने गौर कर, जैसे ही मैंने लॉग इन किया तो पहले ये पूछता है आपको लॉग इन करने के लिए, है ना, लॉग इन करने जब मैंने लॉग इन किया तो इसने मुझे कौन सा इंस्टेंस लिया, बैश 201 का इंस्टेंस ले लिया। मतलब इसके आगे का इसको पता है कि ये कौन सा इंस्टेंस से अपन जुड़े हुए हैं। पोस्टमैन पे आपको पूरा देना पड़ता है, पूरी रिक्वेस्ट देना पड़ता है। तो इसके लिए जो अपना यहाँ पे रिक्वेस्ट पे ही चलते हैं अपन, अपना इंस्टेंस यूआरएल क्या आया है, तो अपना इंस्टेंस यूआरएल ये आया हुआ है, ठीक है। ये पूरा कॉपी करो, ये आपका इंस्टेंस यूआरएल, ये आपका इंस्टेंस यूआरएल। जब तुम ये बना रहे हो, ठीक है, जब तुम ये बना रहे हो, ये जो बना रहे हो एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे तुमको यहाँ पे तुमको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट भी यूआरएल के फॉर्म में होनी चाहिए, एंड पॉइंट यूआरएल, है ना। तो अभी जैसे कि ये इंस्टेंस यूआरएल है अपना, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, इंस्टेंस यूआरएल कॉपी किया, ये भी हटा दो, ये कॉमा शॉमा सब हटा दो, ठीक है। उसके बाद का पूरा क्या है जो तुमने वहां देखा, तुमने वहां देखा वर्क बेंच पे। इसके बाद में क्या रहने को ना तुम्हारा, इसके बाद में रहने का सर्विस, अपेक्स रेस्ट। और उसके बाद में जो भी तुम्हारी ये है वेब सर्विस का नाम है जो अपन यूआरएल मैपिंग में देते हैं, वेब सर्विस का नाम है अकाउंट सर्विस, है ना, तो वेब सर्विस का नाम है अकाउंट सर्विस। तो वो आ जाएगा तुम्हारा अकाउंट सर्विस। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा तुमको, ये कहाँ से मिलेगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमको ये आया हुआ है इंस्टेंस यूआरएल में, ये आया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक तुमको कॉपी करना है। उसके बाद में तुम्हारा बाकी का वही है, सर्विसेज, अपेक्स रेस्ट, जो तुमने देखा जब तुम ये अपना वर्क बेंच से जब हिट करते थे तो वही सेम चीज है, बराबर। तो ये हो गया मेरा ये वाला एक्सेस करने के लिए, इसको मैंने कॉपी किया। अच्छा, साइड बाय साइड एक डॉक्यूमेंट हमेशा रखना अपने साथ में, जैसा मैं करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया। अब उसके बाद में इन द अथोराइजेशन सिलेक्ट द टाइप एज बियरर टोकन। मतलब आप चलो अथोराइजेशन पे, अथोराइजेशन में टाइप है, यहाँ पे टाइप में देखो इतने सारे टाइप रहते हैं, नो ऑथ, एपीआई की, उसमें से आपको लेना बियरर टोकन। क्यों, कि आपका जो रिक्वेस्ट आई है टोकन टाइप क्या है आपका, बियरर है। इसलिए यहाँ पर भी जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें टोकन क्या रहनी चाहिए, बियरर टोकन, बियरर टोकन। यहाँ डालनी है आपको टोकन, यहाँ डालनी है आपको, ये जो डायग्राम है ना, कि रिस्पॉन्स
रिक्वेस्ट जो दे रहे हैं, तो रिक्वेस्ट मस्ट हैव समथिंग कॉल्ड एज एक्सेस टोकन, रिक्वेस्ट मस्ट हैव समथिंग कॉल्ड एज एक्सेस टोकन, रिक्वेस्ट मस्ट हैव समथिंग कॉल्ड एज एक्सेस टोकन। तो रिक्वेस्ट आपकी ये हो गई रिक्वेस्ट, इसके साथ में टोकन जाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपने टाइप सिलेक्ट किया बियरर टोकन, और अब आप यहाँ पे टोकन दो। टोकन कहाँ है, ये साइड में, ये है आपकी टोकन, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करो, ठीक है, ये है आपकी टोकन, इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ टोकन मिला के इसको मैंने किया पेस्ट, ठीक है। इतनी चीजें, इतनी चीजें, उसके बाद में टोकन दो, और उसके बाद में फिर सीधा आप हिट मार दो, बस उसके बाद में सीधा हिट मार दो। अब ये हो गया, सब चीजें रेडी है अपने पास में, मेथड सही है, रिक्वेस्ट है, उसके बाद में बियरर टोकन सिलेक्ट कर लिया, टोकन भी दे दिया, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तो अब मैं एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सेट, अब ये जाएगा उधर, ठीक है, अब ये जाएगा उधर, और कुड नॉट फाइंड अ मैच यूआरएल, अब ये जाएगा उधर और वहां से डेटा लाएगा या फिर एरर देगा, इसने एरर लाया, बैच 201 डेड है, सर्विसेज अपेक्स टेस्ट अकाउंट सर्विस, so not found message, could not find a match for URL, not find a match for match services. कभी कभी एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाते हैं, उससे भी होता है, मैं फिर से एक्सेस टोकन कॉपी करता हूँ यहाँ, अभी फ्रेश कॉपी ऑफ एक्सेस टोकन से किया, तब भी कुड नॉट फाइंड अ मैच फॉर यू, इसको अकाउंट सर्विस, अकाउंट्स सर्विस है, अकाउंट्स, ये देखो नाम गलत है, यहाँ पे अकाउंट लिखा है, यहाँ पे अकाउंट्स लिखा है, इसलिए है ये अकाउंट सर्विस, अकाउंट सर्विस। हाँ, चलो ठीक है, भाई गलत कर रहा हूँ यार, गलत कर रहा हूँ तो गलत ही आएगा ना। नाउ दिस इज द रिस्पॉन्स, ठीक है, नाउ दिस इज द रिस्पॉन्स, ये आ गया आपका रिस्पॉन्स। स्टेप नंबर ये मैं आज अपडेट कर देता हूँ, 4, यू गेट द विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम एपीआई, ठीक है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, दिस इज योर रिस्पॉन्स, देखो जेसन फॉर्म में पूरा डेटा आ गया, ठीक है, जेसन फॉर्म में पूरा डेटा, स्टार्ट ऑफ अरे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, टाइप कहाँ से आया, अकाउंट, यूआरएल कौन सा है, ये यूआरएल है, ठीक है, उसके बाद में ये एंड हो गया, उसके बाद में अब डेटा स्टार्ट होता है, ठीक है, अब अपना डेटा स्टार्ट होता है, आईडी, जो जो अपन ने फेच करे क्वेरी में, जो जो है क्वेरी में क्या क्या तुम्हारा आईडी, नेम, रेटिंग, इंडस्ट्री, एनुअल रेवेन्यू, फोन, फैक्स, टाइप, अकाउंट, है ना, ये सब, और 5 डेटा मांगा है तुमने, और 5 ही मांगा, मेरे को पता था बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आएगा। ये हो गया पहला रिस्पॉन्स, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्स, एनुअल रेवेन्यू, फोन, फैक्स, टाइप एंड एक्टिव स्टेटस, ठीक है, उसके बाद में ये पहला रिस्पॉन्स, ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स, कॉपी ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स। ऐसे ही फिर स्टार्ट होता है दूसरा रिस्पॉन्स एट्रीब्यूट्स, टाइप, ठीक है, यूआरएल, ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट आता है हमेशा, ये डिफॉल्ट आता है। उसके बाद आपका सेकेंड रिस्पॉन्स आईडी, नेम, ठीक है, एंड दिस, एंड देन समझ रहे हो, इस तरह से ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया, दिस इज योर होल कंप्लीट रिस्पॉन्स, ये आ गया आपका जेसन फॉर्म, ये आ गया आपका जेसन फॉर्म। इफ आई मेक एनी चेंजेस, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लिमिट इक्वल्स टू 2 करता हूँ इसमें से,
लेट मी वंस अगेन हिट दिस एपीआई, ये एपीआई को फिर से हिट करता हूँ, ये आ गया मेरे पास दो डेटा रैंडमली अटेंड, बिकॉज आपने कुछ क्वेरी में कुछ मेंशन नहीं करा है इसलिए। सो सी, इस तरह से एक्चुअल इंटीग्रेशन ऐसा होता है बॉस, ये है रियल टाइम इंटीग्रेशन। तो जब भी हम रियल टाइम इंटीग्रेट करते हैं, कोई भी वेब सर्विस कॉल करते हैं, आपने जितनी भी वेब सर्विस बनाई है वो सारे आपके लिए असाइनमेंट। मैंने आपको गेट मेथड बता दिया, अब गेट के बाद में डिलीट पढ़ाया मैंने, डिलीट के बाद में आपको मेरे ख्याल पोस्ट पढ़ाया है, उसके बाद अपडेट के लिए कल पढ़ाया था मैंने पुट मेथड, पैच आपको होमवर्क दे रखी है। आपके पास में क्या है, वेब सर्विसेज सारी क्रिएटेड, ठीक है, वेब सर्विस सारी क्रिएटेड। अच्छा, कनेक्टेड ऐप भी नहीं बनाओगे हर बार, ऐसा नहीं है, आपको हर बार कनेक्टेड ऐप नहीं बनाना, बस ये एक कनेक्टेड ऐप है, ये एक के लिए प्रिपेयर करोगे सभी के लिए हो जाता है। ये ऐसा मत सोचो कि हर बार तुम हर वेब सर्विस के लिए नया कनेक्टेड ऐप बनाते हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ये करोगे तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। हर वेब सर्विस का कनेक्टेड ऐप नहीं होता है, कनेक्टेड ऐप एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक है, हर स्टोर का एक गार्ड नहीं होता है। अगर तुमको एक मॉल में जाना है तो हर स्टोर में जाने के लिए गार्ड नहीं खड़ा होता है, एक ही गार्ड खड़ा होता है, वो सीधा वो मेन गेट पे खड़ा होता है। समझ रहे हो इस बात को? अगर तुमको मॉल में जाना है, मॉल में 50 स्टोर हैं, तो क्या 50 स्टोर के अपने अपने गार्ड रहते हैं क्या, कि हर जगह जाके तुम वही चेक कर, तुम बोलोगे हट जाता मैं यहाँ से महल में जाके शॉपिंग करता? तो हर वेब सर्विस का कनेक्टेड ऐप नहीं होता है, कनेक्टेड ऐप एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का। यही कंज्यूमर की, यही कंज्यूमर सीक्रेट आपको स्टेप नंबर 1 जो रहेगी, ये सबके लिए कॉमन है। अभी अगर बाय द वे मैं इसके बाद कोई दूसरी एपीआई हिट करवाता हूं, जैसे कि मैं पोस्ट हिट करवाता हूं, पोस्ट के लिए मैं यूआरएल डालूंगा, यूआरएल के साथ मुझे अथराइजेशन देना पड़ेगा, तो मैं सिलेक्ट करूंगा बियरर टोकन, टोकन मेरा यही रहेगा, टोकन मेरा यही रहेगा, यही टोकन मैं यहाँ पे देना है मुझको, समझ रहे हैं आप, यही टोकन यहाँ पर देना है। हाँ, चेंज क्या होते हैं, चेंज क्या होते हैं, चेंज होता है आपका रिक्वेस्ट चेंज होती है, आपको नए सिरे से रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, उसमें फिर आपका जो एपीआई का नाम अपना जो एपीआई का नाम वगैरह है, ये वाला, ये सब आपका चेंज होगा। उसमें भी सिर्फ क्या चेंज होता है, सिर्फ इतना पार्ट चेंज होगा। अगर सही बताऊं तो, अगर बाय द वे अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा जो ये है ये चेंज होता है, और बिकॉज ये पोस्ट मेथड है, बिकॉज ये पोस्ट मेथड है, तो पोस्ट में आपको पैरामीटर सप्लाई करने पड़ते हैं, पोस्ट में आपको पैरामीटर सप्लाई करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको जेसन पेलोड भी लगेगा। हाँ, अभी जैसे ये आपकी पोस्ट मेथड है, ठीक है, इसका नाम है न्यू अकाउंट सर्विस, मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा न्यू अकाउंट सर्विस, ठीक है, अथराइजेशन मैं कोड दे चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पे जो है इसके साथ में ये पोस्ट मेथड है, तो डेटा इंसर्ट कर रही है, तो डेटा भी तो चाहिए, डेटा आपको जेसन पेलोड से कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, डेटा आपको जेसन पेलोड से, संतोष वर्मा के बजाय अपन करते हैं सुनील, ठीक है, सुनील वाया पोस्टमैन, ऐसा ये डेटा करता हूँ। ये जेसन पेलोड फिर कहाँ दोगे, तो उसके लिए बॉडी में जाना पड़ता है, ठीक है, बॉडी में रॉ डेटा, फॉर्म डेटा, अनकोडेड बाइनरी टेक्स्ट, जेसन, ठीक है। तो अब देखो ये वाली ये एपीआई हिट कर रहा हूँ मैं, और मैं बॉडी में गया, बॉडी में रॉ डेटा, यहाँ से जेसन सिलेक्ट करा, सम फॉर्म डेटा रॉ बाइनरी, ठीक है, ठीक है, लेट ट्राई टू रीड। हाँ, तो आपने क्या लिख के आ गया, अकाउंट इंसर्टेड, क्यों आया अकाउंट इंसर्टेड लिख के, क्योंकि तुमने तो लिखा था, तुम्हारी वेब सर्विस जो है, तुम्हारी वेब सर्विस है, उसमें लिखा हुआ है अकाउंट इंसर्टेड, एंड सो देखो एपीआई हिट हो गई, एपीआई हिट हो गई, एपीआई ने अपना रिस्पॉन्स भी भेज दिया, अकाउंट इंसर्टेड। नाउ व्हाट यू कैन डू इज लाइक, यू कैन गो टू सेल्सफोर्स, और सुनील वर्मा, सुनील वाया पोस्टमैन आया है क्या, वो आप चेक कर सकते हो, तो आप लेट्स गो टू दैट, लेट्स गो टू द अकाउंट ऑब्जेक्ट, सुनील वाया पोस्टमैन किधर, ये कहाँ से इंसर्ट हुआ, थर्ड पार्टी से, लेकिन ये ऐसे ही नहीं इंसर्ट हो गया, मुंह उठा के आया और अंदर नहीं घुस गया, बाकायदा ऑथेंटिकेट होके आया है, बाकायदा ऑथेंटिकेट होके आया है। तो कभी भी रियल टाइम पे जितनी भी वेब सर्विसेज होती है ना, वो हमेशा 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 याद रखो ओ ऑथ के अंदर ही काम कर,
हम कभी भी अपने रिसोर्सेस, अपने सेल्स फोर्स की जो रिसोर्सेस है, उसको ऐसा डायरेक्टली एक्सपोज नहीं कर देते दुनिया को कि लाओ आओ लूट के ले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। अपन बराबर जो सही तरह से आता है ना उसी को डेटा देते हैं, बाकी नहीं देते। तो रियल टाइम इंटीग्रेशन विदाउट OAuth ऑथेंटिकेशन नहीं होता है इफ यू आर अ प्रोवाइडर। इफ यू आर अ प्रोवाइडर देन रियल टाइम इंटीग्रेशन कभी भी OAuth के बिना नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इंटीग्रेशन का जो आज आपने पढ़ा, मतलब आज तक जितना भी पढ़ा तुमने, तो सब चीजों का निचोड़ है ये, सब चीजों का निचोड़ है तुम्हारा। समझ में आया ये ऐसा? तो चलो ये दो बता दिया तुमको मैंने। अब ये बताना इसलिए भी जरूरी था कि तुमको ये पता होना चाहिए कि जब अपन पोस्ट दे रहे हैं, पुट दे रहे हैं या डिलीट दे रहे हैं, तो उसके साथ अपने को पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, जेसन पेलोड देना पड़ता है। अगर आप पोस्ट दे रहे हो या फिर आप इसके पहले वाला जो था आपका वो था डिलीट। डिलीट में आप, खैर डिलीट में तो खैर आप साथ ही में दे दोगे आप इसमें, जब ये बनाओगे तो उसी के साथ में आप जैसे नेम इक्वल टू एच कम्युनिकेशन दे, यूआरएल के अंदर दे दोगे, वो बात नहीं है। जहां जहां जेसन पेलोड देना है ना, जैसे ये पोस्ट में पर्टिकुलरली आपको जेसन पेलोड देना पड़ता है, वो पोस्टमैन में कहाँ देते हैं, तो उसके लिए आप बॉडी पे जाइए, बॉडी में रॉ सिलेक्ट करो, लेकिन टाइप जो है वो जेसन रखो, टाइप जो है वो जेसन रखो। और फिर जेसन का ये पेलोड हो, ऊपर में आपका है रिक्वेस्ट, नीचे में आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर आप इस तरह से। नाउ डू द प्रैक्टिस ऑन एवरी मेथड व्हाट यू हैव क्रिएटेड सो फार। सबके ऊपर प्रैक्टिस करो पूरा, सब के ऊपर प्रैक्टिस करो और पोस्टमैन को इम्प्लीमेंट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर इंटीग्रेशन। बाय tomorrow I'll going to start with your, or probably with today evening, I mean, I'm not sure, but yeah, I'm going to announce that into your WhatsApp group. So on the next lecture, whenever it is, we are going to start with the deployment, and that's hardly a matter of 2 days probably. One more lecture I'm planning for your lightning experience। ठीक है, वैसे 2 या 3 चीजें वो मैं आपको और कवर करके दूंगा। और जो मैंने आपको अप्रूवल प्रोसेस का प्रॉमिस किया है कि अप्रूवल प्रोसेस व्हेनेवर आई एम गोइंग टू टेक इट फॉर 204, दैट रिकॉर्डेड सेशन, इधर आई विल बी इवन आई एम, अगर मुझे याद रहा तो मैं इनवाइट कर लूंगा तुम लोगों को, और इफ यू आर एबल टू ज्वाइन तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आई विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ दैट सेशन, अप्रूवल प्रोसेस का मैं बता दूं। तो मेरे एंड से चीजें हो गई हैं खत्म। अब ऑलमोस्ट इस वीक में, इस वीकेंड तक, मैं संडे तक पूरा कवर कर देता हूँ। अभी आपको कंटिन्यूटी में पढ़ लेते हैं, अभी गैप नहीं लेते हैं। कल, आज, कल, परसों, नरसों, संडे तक पूरा कवर करके खत्म कर देते हैं, तो दिस वीकेंड तक आपका मेरे एंड से पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द